Dental oral health is an essential part of our overall health and well-being. And we often ignore our dental health problem until the problems that we have obtained, grow a lot and it becomes much worse. Poor oral hygiene can lead to many problems. It may be linked to any systematic problem like heart diseases, cancer, or even diabetes. Maintaining healthy teeth is as important as maintaining our physical and mental health. So let's talk about some tips from the famous wellness expert. And I'm welcoming you all to our show, Welcome Wellness, presented by Trident Communications in association with World Humanitarian Foundation. Our wellness expert for today is Dr. Sneha, and I'm your host, Alka. So now that we have Dr. Sneha with us on our show today, let's talk about wellness and healthy teeth. Hello, Sneha ji, how are you? Thank you, Alka. I'm very good. Thank you very much. And first of all, thank you to Trident Communication for such a wonderful show and spreading awareness regarding each and every aspect of health. So it's a pleasure to have, I'm giving this show. It's a pleasure for me. Thank you very much. That you have taken out time from your routine and you're here on this episode of Welcome Wellness, and you will be sharing some tips about healthy teeth with people. So yeah. Now you said it very truly. Ki people ignore the dental health until and unless problem become very worse, and then they come to us with problem in an advanced stage. So we have to do the intervention like RCTs and all. So if these problems are taken care of in very initial stages, so we can do it in a less intervening way. All right. So what would you list are the problems and the causes of toothache? Toothache, the most common cause of the toothache is the decay in tooth, or what we call the cavities in the tooth. And another second most common cause is the fracture in the tooth, which can be due to any trauma, like any accident or any trauma, or maybe like fracture in the tooth while eating something. And the third most common cause for pain in the tooth is infection in the gums, because of which there is abscess formation or pus formation in the gum area, which causes pain in the tooth. All right. So if people usually believe that if you chew tobacco is when you teeth get stained. So, but I've seen people who do not chew tobacco, and I know those people personally, but they have stained teeth. So what would be the reason behind that? Yeah, staining of teeth can be because of many reasons, like having a white teeth with the ever shining smile is something which everyone likes to have, but we all have a definite shade and chroma of our tooth. Like some people have very white teeth, some will have a yellowish shade of teeth, so that's very common. But like staining of the teeth can be because of lifestyle habits, like tobacco is the main cause because of which staining is there, but people who used to have like more of coffees and teas and more of wine, they can also get stained. Even tobacco in chewing form and in the smoke form also, like smoking also gives the staining in teeth. And another thing is like as age advances, there is wear and tear. Our enamel get wear off, and the dentine which is below the enamel layer, it is slighter yellowish in shade comparative to enamel. Enamel is whiter in shade. So teeth looks yellowish with the advancing age also. And some medications also causes staining in the teeth. And like people who don't maintain the good oral hygiene, जो लोग properly brush नहीं करते, कई बार ऐसे कुछ एरियाज होते हैं टीथ के जहाँ पे आपका ब्रश नहीं जा पाता या लोग नहीं कर पाते, तो वो एरिया धीरे धीरे प्लाक डिपोजिशन के कारण वहां पे भी स्टेनिंग हो जाती है, तो वो भी स्टेनिंग कॉज करते हैं. All right. So if somebody is taking proper care of their teeth and they're brushing twice a day, is there still a chance of having dental caries or cavities? Dental caries is mainly because of three things. There are three aspects of having a dental caries. First is the tooth morphology, second is the diet factor, and third is the bacteria which is there in our mouth. Some of the bacteria are part of our normal oral flora. But what happens when the food gets stuck? अगर खाना फंसा हुआ रहेगा दांतों के बीच में या दांत के ऊपर खाना स्टक है, स्पेशली ऐसी चीजें जिनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, शुगरी फूड्स जो होते हैं जैसे चॉकलेट्स हो गए, चिकी हो गई, मीठी चीजें हो गई, और जो लोग बहुत हाई स्टार्च कंटेंट वाला फूड खाते हैं जिसमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और वो जब माउथ पे स्टिक रहता है
वो टूथ अगर आपके वो फूड अगर दांत पे स्टिक है और उसके स्टिक होने की वजह से जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे माउथ में, उनके लिए वो फ्यूल का काम करता है, दैट इज फ्यूल फॉर दैट बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं एंड आफ्टर ग्रोइंग दे कॉज द फर्मेंटेशन ऑफ दैट फूड। उस फूड के फर्मेंटेशन के कारण उसमें फिर वो एसिड सीक्रेट होता है जो आपके इनामल को लॉस कर देता है, वो इनामल धीरे धीरे खत्म होने लगता है फूड का। सो दैट इज बिकॉज अगर वो खाना बहुत देर तक आपके मुंह में रखा हुआ है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि डू नाइट ब्रशिंग। नाइट ब्रशिंग बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा देर तक फूड आपके टूथ पे स्टक न रहे। एंड वी ऑल्सो एडवाइज पेशेंट्स टू गो फॉर फ्लॉस, बिकॉज फ्लॉस करने से इंटरडेंटल क्लीनिंग हो जाती है, तो दांतों के बीच में जो फूड लॉजमेंट होता है वो नहीं होता, तो जो कि बहुत एक मेजर कॉज है डेंटल केरीज का। हम ब्रशिंग करते हैं बट वी डोंट डू फ्लॉसिंग। All right. So this is a personal question. Like when I was a kid and I had my milk teeth on, so I had a cavity and then the tooth broke off. So Yes. is there a chance that like after I had the permanent teeth, I'll still have a cavity there? नहीं, उस दांत की वजह से उसमें कैविटी नहीं हो सकती, जो चला Okay. गया वो चला गया, बट जो Okay. नया आपका इरप्ट हुआ है ओरल कैविटी में, उसमें फिर से कैविटीज हो सकती हैं। All right. Okay. So my question is this: that how do teeth become sensitive to cold or hot? Yes. Actually we have the outer layer of the teeth which is called enamel. Below enamel there is a softer layer which is much soft and it has small tubules, that is called dentine. So because of adhesion, that is the generalized wear and tear of the teeth, because of erosion is when we do wrong brushing technique. आपने देखा होगा बहुत लोगों के दांत कट जाते हैं जहाँ पे जिंजाइवा होता है और जहाँ दांत स्टार्ट होता है। बहुत लोग बहुत हार्ड ब्रश यूज करते हैं और बहुत विगरसली ब्रशिंग करते हैं। वो विगरस ब्रशिंग करने के कारण देयर इज अ कट इन एनामल, एनामल जो है वहां का वेयर ऑफ हो जाता है, उसकी वजह से उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है लाइक बहुत ज्यादा जिनको रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिड रिगर्जिटेशन जिनको ज्यादा होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी जो ऊपर का एनामल होता है वो वेयर ऑफ हो जाता है। उन लोगों को भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि जो डेंटिन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उनमें नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो उसमें कुछ भी ठंडा या गर्म जब लगता है तो वो नर्व जो होती है उस चीज को रिस्पॉन्ड करती है, जिसके कारण हमको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। Okay. So is bleeding gums also somewhere more or less related with this entire scene? Alka, sorry, I couldn't hear. Okay, the question was, is bleeding gums also somewhere more or less related with this entire scene? No, bleeding gum is related to what we call periodontium of our tooth, जो हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं ना मसूड़े, जिंजाइवा। ब्लीडिंग गम उनसे रिलेटेड रहता है। अगर हमारा जिंजाइवा हेल्दी नहीं है, अगर हमारे जिंजाइवल में कोई प्रॉब्लम है, पेरियोडोंशियम इज द स्ट्रक्चर व्हिच होल्ड्स द टूथ इन इट्स प्लेस। दांत को अपनी जगह पे पकड़ के रखता है पेरियोडोंशियम, जिसमें कि आती है हमारी बोन और उसके आसपास का जिंजाइवा। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्शन बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। एक तो सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि जब हम खाना खाने के बाद जो प्लाक डिपॉजिट हो जाता है जिंजाइवा के ऊपर, अगर वो प्लाक टाइमली क्लीन नहीं हुआ तो वो टाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। अगर वो कैलकुलस उसमें जमा रह गया तो जिंजाइवल स्वेलिंग हो जाती है एंड कुछ टाइम के बाद वहां पे ब्लीडिंग होने लगती है। और अगर ये इन्फेक्शन अंदर डीप चला गया, मसूड़ों में चला, बोन में चला गया, तो दैट कॉजेस पेरियोडोंटाइटिस, जिसको हम कॉमन टर्म्स में पायरिया कहते हैं। सो उसमें ब्लीडिंग गम्स होती है, देयर इज अ बेड ब्रेथ, हैलिटोसिस का प्रॉब्लम होता है, समटाइम्स देयर इज पस फॉर्मेशन। ब्लीडिंग गम्स कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में है, उसकी वजह से स्कर्वी होता है, व्हिच इज अ मेडिकल कंडीशन। उसका सबसे बड़ा सिम्टम है ब्लीडिंग गम्स। सो विटामिन सी एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है। All right. Okay, so what are the causes of mouth ulcers and oral cancers? Mouth ulcer and oral cancers are very different. Sometimes people get confused कि अगर अल्सर हो गया तो अरे वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। माउथ अल्सर बहुत सारे कारण से होता है। सबसे कॉमन कॉज है माउथ अल्सर का, कोई शार्प टीथ अगर आपके माउथ में है, बहुत शार्प टीथ है, किसी भी वजह से वो टीथ शार्प हो गया है, टूट के शार्प हो गया है या एट्रीजन की वजह से शार्प हो गया, वो अगर कंटिन्यूसली टंग पे या माउथ के किसी भी एरिया पे टच हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यू पे टच हो रहा है, तो वो अल्सरेशन कॉज करता है। सेकेंड एक इम्पोर्टेंट कॉज होता है अल्सर का,
स्ट्रेस या एंजाइटी। स्ट्रेस अल्सर्स बहुत कॉमन है, फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स को ज्यादा होते हैं, एग्जाम टाइम पे दे डेवलप स्ट्रेस अल्सर्स, एंजाइटी की वजह से भी अल्सर्स होते हैं। एंड विटामिन की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी अल्सरेशंस होते हैं माउथ में। ये जो माउथ अल्सर्स होते हैं, दे गेट, वो अपने आप 1 से 2 हफ्ते के बीच में ठीक हो जाते हैं। दीज आर नॉट हार्मफुल, बट डेफिनेटली दे आर वेरी अनकंफर्टेबल, खाने में, पीने में, इनफैक्ट ब्रशिंग में भी बहुत तकलीफ होती है पेशेंट्स को। सो माउथ अल्सर इज बिकॉज ऑफ दीज रीजन। हाँ, अगर एक जगह पे बार बार अल्सर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे बार बार अल्सरेशन हो रहा है, किसी शार्प टूथ की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर। कैंसरस अल्सर्स जो होते हैं वो जनरली पेनफुल नहीं होते, उनमें पेन नहीं होता, लेकिन वो बहुत जल्दी स्प्रेड भी होते हैं। सो दैट इज डिफरेंट। और कैंसर का बहुत बड़ा रीजन है टोबैको। टोबैको इन एनी फॉर्म, आइदर इन स्मोकिंग फॉर्म लाइक सिगरेट्स के फॉर्म में और इन स्मोकलेस फॉर्म, दैट इज हार्मफुल एंड दैट इज द मेजर कॉज ऑफ कैंसर। और बीटल नट, जो सुपारी खाते हैं लोग, दैट इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ कैंसर। All right. So we are seeing that a lot of cases regarding black fungus have been coming up ever since the COVID thing happened. So what exactly is this? Black fungus, which is known as mucormycosis. Black fungus के जो spores होते हैं, mucormycosis के जो spores होते हैं, these are present in our environment. वो हवा में रहते हैं वो spores. Because of COVID, we have our immunity very down. जो patient hospitalized रहा है लंबे समय तक COVID की वजह से, हॉस्पिटल में ICU में हॉस्पिटलाइज रहा है, वेंटिलेटर पे रहा है, या जो पेशेंट डायबिटिक है, जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। तो जब ये ब्लैक फंगस के स्पोर्स वो इनहेल कर जाते हैं, ऐसे एरिया में अगर वो है जहाँ पे वो ब्लैक फंगस के स्पोर्स एबंडेंस में है, वो अगर इनहेल करके उनके माउथ से या नेजल पैसेज से अंदर चले जाते हैं, तो वो हमारे साइनस में जाके अपने आप को इम्प्लांट कर लेते हैं। अब क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उससे फाइट कर सके, तो वो स्पोर्स डेवलप करने लगते हैं, वो फैलने लगते हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन होगा तो हमारे बॉडी के जो कॉमन फ्लोरा है या हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल्स है उस फंगल स्पोर्स को डेवलप होने नहीं देता। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड इम्यूनिटी इतनी डाउन हो चुकी रहती है, और दूसरा डायबिटीज जिसमें ब्लड शुगर ग्लूकोज बहुत हाई है, उसकी वजह से वो स्पोर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है साइनस में, फिर वो नेजल पैसेज में जाता है, माउथ में ग्रो करने लगता है, लंग्स में भी जाके वो ग्रो करने लगता है, एंड देन इट कैन स्प्रेड टू आवर GI ट्रैक, यानी हमारे जो आंत होती है, जो पेट वाला एरिया होता है, वहां पे भी वो स्प्रेड कर सकता है, इनफैक्ट पूरी बॉडी में वो ग्रो कर सकता है। तो उसको एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए। तो इफ इट इज नॉट ट्रीटेड टाइमली, हमने उसको एंटी फंगल के साथ ट्रीट नहीं किया या सर्जिकली रिमूव नहीं किया, तो इट कैन बी फेटल फॉर द पेशेंट्स। All right. Okay, so as we are heading towards, kind of the end of today's episode, so there are a couple of last questions left. One of the questions is that how do we avoid crowding of teeth or gaps in teeth? Like crowding of teeth and gaps in between teeth are now very well taken care of with orthodontic treatments. Initially, some of the time it's unavoidable. Like जब बच्चे grow कर रहे होते हैं 6-7 years की एज में, अगर उनके दूध के दांत टाइमली नहीं गिरते हैं और उनके दांतों के बीच में स्पेस नहीं होता, तो जो परमानेंट टूथ है उसको एकोमोडेट करने के लिए हमारे जॉज में स्पेस नहीं होती, तो वो आगे पीछे से आने लगती है। सो लाइक अगर हम टाइमली उनको चेकअप के लिए ले जाते रहे 6 मंथ्स में, तो वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम कि वो अलाइनमेंट में आए। लेकिन कई बार होता है हमारे जॉज में बोन में स्पेस ही नहीं होती और टीथ क्राउडिंग हो जाती है। तो लाइक व्हेन बच्चे जब 11-12 साल की एज में होते हैं, तो देन वी डू लाइक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि ब्रेसेस या ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, कॉमन टर्म्स में ब्रैकेट्स कहते हैं, वो पेशेंट्स को लगाए जाते हैं, एंड इट टेक्स 1.5 to 2 years एंड दैट कैन बी अलाइंड इन अ नॉर्मल वे। ऑक्लूजन उनका नॉर्मल किया जाता है। All right. So what exactly are dental implants? Dental implants is one of the best method to replace a missing tooth. People who have lost their tooth because of any reason, like because of caries, अगर extraction करना पड़ गया या किसी accident में उनके दांत चले गए, लूज हो गए, और they are very young, उनका bone बहुत अच्छा है,
And that is basically, implants are basically replacement of the root of the tooth. जहां पे दांत की रूट होती है उसी जगह पे हम वो इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं, एंड देन अबाउट दैट इम्प्लांट वी गिव द प्रोस्थेसिस, या जिसको हम दांत कहते हैं, क्राउन कहते हैं, वो उसके ऊपर लगाया जाता है। डेंटल इम्प्लांट्स का बेनिफिट ये होता है, एक तो आपको बार बार आपका कोई और एडजेसेंट टीथ इफेक्ट नहीं होता, दूसरा आपको उसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार डेंचर को निकाल के क्लीन करना इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल फॉर देम, सो वो इम्प्लांट्स के साथ आराम से खा सकते हैं, उसको हाइजीन मेंटेन करना बहुत इजी होता है उसमें, एंड लुक वाइज इट्स आल्सो लुक वेरी नाइस, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगता कि आर्टिफिशियल दांत लगे हुए हैं। Alright. So, can you just like list down a few tips so that people can, know how to maintain a good, proper oral hygiene? So, like first and foremost tip for maintaining a good oral hygiene is brushing twice a day. Brush twice a day for 2 minutes. Like brushing should not exceed more than 3 to 4 minutes. कई लोग होते हैं ना बिल्कुल 5-6 मिनट तक ब्रश किए जा रहे हैं, so that causes adhesion into 2 times a day for 2 minutes. That's the rule of brushing. And your brushing technique should be proper. Like we should not do the horizontal brushing. We should do proper brushing like in round motions and with modified bars technique, which we explain to our patients when they come to the clinic. And उसके अलावा we should do floss regularly. Floss is very much essential for interdental cleaning क्योंकि most of the cavities develop interdentally, तो एक फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, एक रेगुलर चेकअप 6 months में अपने डेंटिस्ट के पास, every 6 months you should visit your dentist, क्योंकि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है वो डेंटिस्ट आपका अर्ली स्टेज में कैच करके इट कैन बी रिलीव्ड इन स्मॉल, मतलब कम उसमें आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। सेकेंड थिंग इज food. We should avoid any kind of food which have high starch content. अगर हम ऐसा food ले भी रहे हैं, जैसे junk food अगर हम ले भी रहे हैं, तो we should consider brushing it after having our food. And we should drink plenty of water. Again, we should take vegetables, we should take citrus foods which gives us vitamin C, green vegetables जिनसे कि हमको विटामिन K मिलता है, और ऐसा खाना जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जिससे कि विटामिन डेफिशिएंसी ना हो हमारी बॉडी में। सो अच्छा हेल्दी खाना खाने से हमारे दांत भी अच्छे रहते हैं। एंड वी शुड रेगुलरली चेंज अवर टूथ ब्रश ऑल्सो। कई लोग 1-1 साल तक अपना ब्रश नहीं चेंज करते, सो वी शुड चेंज इट रेगुलरली। जब वो ब्रश खराब हो जाता है, लाइक 2 months, 3 months, we should change our food. And tobacco in any form is harmful. It's literally hazardous. Even smoking भी नहीं करनी है, और टोबैको किसी भी फॉर्म में खाना अच्छा नहीं होता माउथ के लिए। और सबसे बड़ा रीजन है ये ओरल कैंसर का। इंडिया में most of the cases of oral cancer are because of tobacco use only. All right. So yeah, I think we are done with the questions for this episode. And thank you so much, Dr. Sneha, for sharing all these tips with all the viewers. Thank you. It was my pleasure to be here. Thank you. And thank you so much for also the time that you took out for this episode of Welcome Wellness. Thank you, Alka. Thank you very much. Yeah. And thank you so much, everyone, for joining with us today on this episode of Welcome Wellness. Our new episode airs up every Sunday. So just subscribe to our channel and take care till the next episode airs up. Bye-bye. Stay safe. Take care.